Yeah, good morning to all. We'll now start your class, your first class of our lateral entry students. Okay, they now start the building material construction. This is your first you see the syllabus. Okay. This is your syllabus. This is your syllabus. Your first module, this is the introduction to engineering material such as covering, cement, and sand. And in this three type of the concrete, reinforced, and steel fibers. Okay, so in concrete, you detail about the plain concrete and RCC. This is the PCC and RCC in the both.
And then lightweight concrete, high performance concrete, polymer, ceramic, refractories, bituminous, plastic materials. Okay, the all details in this first module, timber, glass, plastic, such as this type of material. Okay, and then now second module, reduction to material testing covering, and what is the material engineering, mechanical behavior, characteristics, electrical principle, HT principle, and characteristics, plastic deformation, tensile test standards of different materials, such as this type of material, truss resistance, tensile hardness test, bending, torsion test, the strength of ceramic. Okay, so these are the you this the read in the second module. And the third module is a standard testing evaluation procedure covering laboratory and mechanical testing. Okay, all type of testing you read in the third module. Such as this is the very iron steel non-ferrous material, discuss about elastic deformation, plastic deformation, impact test. Okay, such type of test use the third module. And the fourth module, all are the construction work, such as the your construction, weak masonry, types of bond, construction of wall, partition wall. Okay, the cavity wall, parapet wall. This is the such advantage, disadvantage. Okay, this type of procedure, DPC, dam proofing course. What is the purpose and what is the type of such type of material? Okay, you first if read on the fourth module, and second foundation. What is function, types, and stability of foundation? This is in the such black cotton soil. Okay, and there's a proportion of footing, plastering, and composition method, and various type of roof covering material, floor, and the types of wooden, IPS, tazon, marbles, tiles, synthetic mats. This is construction. Okay, and the such type of floor, door, terrazzo floor, and a window type and flexel, including ventilation and lintel, door and window, PVS material, MDF, a stain. A stairs is the types of positioning and lift and escalator. This is such type of construction work you read in on the module 4. This is the 4 module for your syllabus. Okay, the first you start from the building material. This type of material used in the construction. The first you start from the your okay, this is the binding material. So to start from this cement, lime, aggregate, mortar, admixture, concrete, bricks, stones, steel, timber, and such type miscellaneous such as paint, varnish. This is the miscellaneous work. Okay, the first you start from the bricks. The first your size of the brick. Brick size, your standard size. The standard size of bricks is the 19 to 99 centimeter, and the you practical. Suppose you work on the practical side of it. This is only for read on the book, but on a practical different size of the brick is a different, not in 19 to 9 to 9. Okay, suppose the standard size you're given in your book is 90 into 9 into 9. This is a centimeter. Okay, it's a centimeter. This is convert to mm. This is equal to 190 into 90 into 90. 190 into 90 into 90. Okay, this is the in mm. Okay.
Then your standard size is the given in the 1999 centimeter, but you practical, you work in the side of the practically, that you seen this size of the brick is different. Suppose your place of 19, there is the 23 centimeter into, okay, in the 9, that is the 11 into, and on the place of 9, that is the 8 in the centimeter. This is the size of the brick in the practically. Then you convert it in mm. This is the 230 into 11,110. Okay, and that is the 80. This is the converted to the mm. Okay, so this is the brick size. Actual brick size is on a practically, but this is on the read book in 1999. So how to find the bricks, number of bricks in one MQ with mortar and without mortar, and which type of bond? Generally, I use the two types of bond, and English bond and Flemish bond. It's generally used in the construction. But normally, which bond prefer? The prefer bond is the English. Okay, English bond means one trade and one rise. Okay, you such you read on book your brick size is the 19 to 99 centimeter, but you read on the practically you work on site and practically you see your brick size is a 23 into 11 into end centimeter. Then you convert it into the hello. हेलो यस सर या तुम ही ज्वाइन किया, सिंगल ज्वाइन किए हो और कोई नहीं है? सर अभी तक तो हम ही ज्वाइन किए हैं ओके, सबको बोल देते हैं सर और क्या हाँ सबको ज्वाइन करेगा। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है सर You all are known about the syllabus. सभी लोग सिलेबस के बारे में जानते हो? सिलेबस क्या है तुम लोग का? नो सर ओके, आई सी योर सिलेबस।
Yeah, is it visible? Visible है सबको? सर थोड़ा सा और जूम कीजिए. Now, Yes, sir. Yes, sir. okay. When you read about in the syllabus, your 4 module 1, 2, 3, and 4. In module 4, only for the all types of construction work. Okay. In this module 4, all types of construction work on the module 4. And module first, you read about the material, which type of material used in the construction and how to use. Okay, suppose in module 1, this is all type of engineering material. This is cement, sand, concrete. You all already you read in on the diploma. ये तो तुम लोग डिप्लोमा पढ़े हो ना तुम लोग? Yes, sir. पढ़े. सबको कुछ कुछ पता है? Yes, sir. ओके, ठीक है, तुम क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग बताना क्या क्या तुम लोग को पता है क्या नहीं पता है, ठीक है? And module 2 is the all type of materials is the testing covering. The under comes under module 3 the all types of testing you read. And the module part, okay, the standard test, which type of test you, okay. अबे यार कौन है? जो कुछ रिप्लाई नहीं कर अपना माइक बंद रखो, डिस्टर्ब होता है वैसे. Gautam and Ronak Gupta, this is the off your mic. वाटर सीरीज होता था. तो अपना आपके कौन सा सर्च करो. And the fourth is the used in the construction, brick masonry, types of bond, construction of wall, partition, wall, parapet, and how to use the procedure and materials. And such type of foundation used in the which type of foundation used in construction is types, function, stability of foundation, such as the black cotton soil, and the proportion of the footing. Okay, and the plaster and composition method of plastering. Okay, and types of plastering, pointing, construction procedure is such type of construction material or used procedure in the module 4. So this is your syllabus. All type of material, all type of testing, all type of construction work you read in this syllabus. Is the civil material and construction. Okay, so first I start from the materials. Okay, then with you define with the construction how to construct, how to use, you all type of procedure in defined and with the materials. Okay, and then now start from the bricks. Okay, first you start the bricks. Is the material, engineering materials, building materials is the bricks. Anyone known about the bricks? Yes, sir. Okay, you standard size of bricks. What is the standard size of bricks? Sir, 19 into 9 into 9. 9 into 9. Yeah, what is dimension? 19 into 9 into 9. Yes, sir. Yes, sir. Dimension what? Centimeter. Sir, centimeter, sir. Okay, centimeter. Then actually this is the standard size. ये क्या हम लोग बुक में पढ़ते हैं, but you use in the construction site. So which size? Yes, sir. Size क्या होता है? Which type size is the
in the used in the construction site? क्या this size you used in construction? 99 to 9 centimeter. It practically, this is your books. You read on the books this type of size, but you used in the construction site. Which type of size you used in the construction site of the bricks? क्या साइज होता है जो हम लोग 20 into 10, 20 into 10 into 10. ओके, तुम्हारे पास कोई ब्रिक्स है अगल बगल में रखा हुआ? यस सर। है, ठीक, उसको लेके आओ। हाँ सर है। उसको लेके आओ, उसको तुम वीडियो ऑन करके दिखाओ उसको, और उसका साइज वहां पे स्केल भी होगा, Yes, उसको sir. मेजर करो तो कितना होता है। ठीक है सर। हमें स्टॉप शेयर करते हैं, तुमको शो करके दिखाओ साइज क्या होता है। ओके सर। तो तुम लोग को पता चलेगा कि प्रैक्टिकल में और बुक्स में कितना डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एक और प्रूफ करेंगे तुम लोग को हम कि प्रैक्टिकल में और बुक्स में कितना डिफरेंस है। 1 मीटर में कितना फीट होता है एनीवन? वन मिनट। हेलो, ये कौन सा ब्रिक्स है? फ्लाइस है क्या? हेलो, यस सर। वो कौन सा ब्रिक्स है जो मेजर कर रहे हो तुम उसका? वीडियो कहाँ दिख रहा है सर ब्रिक का? वही वही दिख नहीं रहा है, कहाँ पे कौन लड़का दिखा रहा था? मैं दिखाता हूँ सर, ऑन कीजिए। हाँ हाँ, ऑन है, ठीक है। ये कौन सा ब्रिक्स है? वीडियो नहीं आ रहा। हाँ दिख रहा है, विजिबल। ये कौन सा ब्रिक्स है? ये सर मिट्टी वाला है या कि फ्लाइस है? फ्लायर्स है सर। फ्लाइस है? नो, नहीं, ये मड है, आपका मिट्टी का बना हुआ है। हाँ मिट्टी, वही तो फ्लाइस तो ऐसा होता है। Yes, इसको sir. मेजर करो, सॉरी, इसको मेजर करो, लेंथ पहले मेजर करो, कितना लेंथ है मेजर इसका? इसके लिए स्केल चाहिए सर, स्केल लेके आता हूँ, वेट हाँ लेके आओ। होल्ड ऑन सर। सर ये तो रस्ट किया हुआ है, इसका तो मेजरमेंट हट गया होगा। क्या हो गया होगा? सर मतलब पानी वगैरह पड़ा होगा तो इसका लेंथ थोड़ा घट गया होगा ना सर। कैसे पानी पर लेंथ घट जाता है क्या? लेंथ बढ़ेगा? नहीं सर, वो तो ब्रिक है ना। हाँ तो लेंथ घट जाएगा। नहीं सर, पानी वानी पड़ेगा तो थोड़ा रस्ट हो जाएगा ना। रस्ट हो जाएगा तो जा, अच्छा बताओ, जब तुम ब्रिक वर्क करोगे तो उसको पानी मत डालना उसको। नहीं सर, काफी दिनों से रखा हुआ है इसलिए बोल रहा कोई भी काफी दिन से रखा हो तो क्या साइज चेंज हो जाएगा क्या? हूं।
तुमको हम एक नहीं साइज सर, ऐसे हो तुम। कोई साइज चेंज नहीं होता है, बस क्या होता है कि उसमें अलगी लग जाता है पानी से, ठीक है, वो साइज को बढ़ा देगा। यस सर। देखो उसमें अलगी लगा हुआ है, हाँ सर, वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा। दिख रहा है ना? हाँ सर। तो 15 सर वीडियो कितना सर, साइज? इसका फिलहाल अभी 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। 80 में समथिंग कैसे आएगा? ये देखिए ना, तो थोड़ा रस्टेड भी हुआ है। 15 है इधर, और यहाँ से देख रहे हैं तो वो किस में है? वो तुम्हारा सेंटीमीटर की इंच में है? सेंटीमीटर में बता रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं सॉरी एमएम में बता रहा हूँ। mm में? है, हाँ, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में होगा ना। यहाँ तो एमएम नहीं था। सॉरी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है सर। अच्छा ठीक है, तो कितना है? इधर 11 दिख रहा है, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है 11, और और ऊपर इधर में में 18 पॉइंट समथिंग दिखा, 18। और इधर से है 18.5 के अप्रोच में। कुछ रस्ट भी हुआ है, ये ज्यादा बेटर है सर। वो तो टूटा हुआ है, जो नया जो ब्रिक्स है वो न्यू ब्रिक्स नहीं है तुम्हारे पास? इसको देख रहा हूँ कि 1 मिनट सर। ये 19 है। ओके, कोई न्यू ब्रिक्स लाओ, ये 19 होगा ही नहीं, सब बड़ा रहता है साइज। सर हम लेके आए सर। हाँ न्यू ब्रिक्स लेके आओ। ये 19 है, और कितना है उसका विड्थ और डेप्थ? एक 11 विड्थ है था, सर, 11 और कितना था, 7.5? हाँ अप्रोच 7 है 7, ओके। एक का, हाँ, एक का चौड़ाई और उधर 11 है। है, चौड़ाई कितना है? हाँ विड्थ है 11। ओके ठीक है, देखो चेंज यहाँ हुआ ना, 9 और 7 हो गया, ठीक है। बस ये जो 19 यस है सर। ये हमेशा चेंज रहेगा, ये तुम्हारा 19 होगा ही नहीं, ये या तो 21 रहेगा या तो 23 रहेगा, सर इसमें 21.5 दिया हुआ है सर। है ना? देखो ठीक है 21.5। सर। हाँ हाँ सर, ये 21.5 पे दिख। 5 देखो, और उसका वो नपो ब्रीथ और डेप्थ। सर ये 10 है सर। ओके देखो चेंज हुआ फिर, हाँ सर ये 10 है। और वो नहीं, मोटाई मोटाई, सर थिकनेस थिकनेस, हाँ या, देख रहे सर 6.5। ओके देखो सबको क्लियर हुआ ना? सही दो बुक जो बुक में पढ़ते हैं वो डिफरेंट रहता है, ठीक है? तुम सर, बट ऐसा क्यों रहता है? जो प्रैक्टिकली डिफरेंट रहता है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही तो डिफरेंस है प्रैक्टिकल में और तुम्हारा बुक्स में। देखो एक लड़का तुम बताया वो 21.5, 21.5 इंटू कितना है, 10, यस सर, इंटू 10। इंटू 7.6.5। सर 6.5। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा बिग साइज है जो एक्चुअल जो तुम्हारा यूज कर रहे हो साइट पे, ठीक है। तो अब बताओ इसको चेंज करो, एमएम में करो, इट इज अ सेंटीमीटर, चेंज इन एमएम, ये कितना हो जाएगा? 215 सर 215 100 mm। इंटू 100, 100 इंटू 65 mm। 65। 65 mm। ओके, इसका वॉल्यूम निकालो कितना आएगा? इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 ईटा का वॉल्यूम कितना आएगा?
तुम लोगों को साथ साथ में हाउ टू यूज इन कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिक वॉल, ये तुम लोग को साथ में बताते चले जाएंगे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, मटेरियल भी पढ़ लोगे। तो बताओ हाउ टू फाइंड अ वॉल्यूम। इसको चेंज करो पहले मीटर में। कितना मीटर, कैसे चेंज करो मीटर में? 0.215 इंटू 0.1, यही होगा ना? एंड 65 is equal to 0.065। दिस ओके? सही है गलत है? कैसे आ गया इसके बाद? बताओ ये सही है गलत है? किसमें लिखा? गलत है सर। गलत है? वाह, चलो सर ठीक जो है। आप सर एमएम से जब आप मीटर में चेंज किए तो 10⁻³ से इंटू ना करना पड़ेगा। हाँ तो करके दिखाओ ना तुम। गलत है तो बताओ सही है गलत है, सर। शायद शायद हम गलत सही किए। तो है। सही है। सही है सर। सही है ना? सही है सर। अच्छा बताओ तुम लोग डायमेंशन तुम लोग को आता है? मीटर फीट इंच सब पता है तुम लोग को? 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3 फीट सर, के करीब होता है। हाँ, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है सर। गुड। एक्चुअल बताओ, अप्रोक्स लगभग नहीं होता है 3.28। बताओ ये तुम बुक में पढ़ते हो ना? जी सर। और प्रैक्टिकल में कितना होता है? ये विकास कुमार Practical महतो, दिस इज द यू फाइंड द 0.00139597, व्हाट इज दिस इज वैल्यू? ये इज वॉल्यूम। विकास कुमार, यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। बताओ प्रैक्टिकल में कितना होता है? तो बुक में पढ़ लिए हम लोग। हाउ टू प्रूफ ये सही है, कैसे आप सब प्रूफ करोगे कि सही है? यहीं पे एक प्रूफ होता है कि प्रैक्टिकल में और बुक में कितना डिफरेंस है, मतलब 1 मीटर में कितना फीट होता है। प्रैक्टिकल में जनरली 3 फीट ले लेते हैं सर। जनरल फीट ले लेते हैं। और टू एट कहाँ से लाओगे तुम? जब रेनफोर्समेंट में जाओ तो तुम कहाँ से दोगे पैसा? तुम कंपनी को तो दोगे, तुम उड़ा दोगे। हाँ सर, प्रैक्टिकल का उतना आइडिया नहीं है सर। कल में जैसे 3.33। प्रैक्टिकल में 3. तो पूछो कि प्रूफ कैसे सर करेंगे? ये तो बुक में है, प्रैक्टिकल में है, ऐसा सर क्यों होता है? पूछो जी सर। तो कैसे प्रूफ करोगे इसको? हाउ टू प्रूफ? एक छड़ का लेंथ कितना होता है? बताओ। एक टोटल छड़ का लेंथ कितना होता है? तुम लोग डिप्लोमा किए हो जो तुम लोग को नहीं पता है सब है? भूल गए सर, 12 मीटर होता है सर। कितना होता है? 12 मीटर होता है। क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, सही आंसर बताओ ना सर, सही है कि नहीं? यस, 12 मीटर होता है। और कितना फीट होगा? फीट सर उसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बताओ, फीट में तो होता होगा ना, फीट कितना फीट का रहता है? 40। तो मल्टीप्लाई करो दोनों से, बताओ हमको कितना आ रहा है। पहले 3.28 से करो 12 मीटर में, एक 3.33 से करो, कितना आता है? दिस इज योर प्रूफ। ये तुम्हारा प्रूफ का वे कि सब प्रैक्टिकल में बुक में कितना डिफरेंस।
ये कितना आया 3.2 से मल्टीप्लाई करो 39.36 39.36 या और 3 से करो 39.96 ओके तो कौन सही है? बताओ कौन सा इसमें सही है, ए वाला या ये वाला? एक छड़ का तुम मेजर करना कि सर कितना फीट है, ठीक है? कहीं छड़ देखेगा तुम लोग को एक लंबा एक वन पीस, उसको पूरा को टोटली लेंथ को सीधा करके उसको मेजर करना। दिस इज योर प्रूफ ऑफ कि 1 मीटर में 3.28 हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। जो बुक्स में पढ़ोगे जब एग्जाम दोगे तो यही क्लिक करना, बस साइड पे काम करोगे तो ये वाला फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम काम करो किसी कंपनी में, यू वर्क इन एनी टाइप्स ऑफ कंपनी, सपोज यू कॉस्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ओके, तो तुम फोर्सेस जो वेट निकालते हो तो दिस इज नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है? तो सपोज वो अगर इसको पार्ट को लेते हैं तो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर, एक छड़ में कितना 64 mm, ठीक है? 64 mm छड़ उसके पैकेट में चलेगा बिना यूज का, बिना उसका मेहनत का। सपोज अगर एक दिन में 1000 पीस यूज करता है, ठीक है, 1000 इंटू 64 कितना हो जाएगा? 64,000। 64,000 yes हाउ मच मीटर? 64 मीटर, ये ना हुआ। yes sir तो हाउ मच Hello? नंबर ऑफ रेफोर्समेंट? हाँ भाई हो गया सर। 5 3 नंबर अटेम्प्ट किया था क्या? 5 समथिंग 5 तो पॉइंट। उसमें देखा था +1 है और तो आंसर दिया गया था उसमें -1। हु इज द करेक्ट किया स्टूडेंट? था। पहले यू ऑफ योर वीडियो गौतम, यू ऑफ योर माइक, ठीक है? तो कितना हो गया तुम्हारा 5.5 पीस। बताओ एक पीस का प्राइस कितना है? 10-12 mm का, 12 mm छड़ का प्राइस कितना? सपोज यू 10 या 12 mm, एक छड़ का प्राइस कितना है अप्रोक्स? टाटा का लोग लगभग 700 समथिंग, 735 वन रेनफोर्समेंट का। तो 735 इंटू 5.5 कितना आया? बताओ। 442.5 है 735 के क्या? 4042.5 या गुड, 4042 मतलब 4000 रुपया वो उसके पैकेट में आराम से चले जा रहा है बिना मेहनत का। तो यू लॉस योर कंपनी। तो क्या ये सही है कि नहीं है? बोलो। नहीं सर, सही नहीं है, गलत है। लॉस कर रहे हैं सर, वो सही नहीं है। हाँ गुड, लॉस कर ये सही नहीं। यू आर इंजीनियर, एज इंजीनियर यू वर्क ऑन द साइट, यू this is a minor mistake, this is a major mistake, this is not is minor, this is major, ठीक है? तो ये सब चीज तुम लोग का काम है कटिंग करना। ये कॉन्ट्रैक्टर तो सीधा दे देगा कि हाँ इतना मेरा है, इतना वो 40 फीट के है, मतलब वो तुम्हारा 3.28 से मल्टीप्लाई करके दे देगा, तुम उसको साइन कर दो, बट वो ले रहा है पैसा तुमसे इतना का 40 फीट का। तो उसके पैकेट में 64 mm हर पीस पे जा रहा है, तो दिन भर में 1000 पीस यूज किया तो उसके पास आराम से 5000 रुपये चला गया। उसका मतलब 20 लेबर का खर्च, 15 लेबर का जो खर्च है उसको तो ऐसे ही मिल गया। अगर 300 रुपीज पर लेबर का चार्ज है तो उसका आराम से उसको पैकेट में उसको मिल गया, उसको तो कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा, उतना के लेबर को पेमेंट भी कर दिया। तो ये सब मेजर चीज जो माइनर चीज को जो मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो यू एज इंजीनियर यू वर्क ऑन साइट, you see this type of problems on this during the BOQ, bill of quantity. You find the BOQ, then you check the BOQ, then you consider is how to consider this type of
मिस्टेक। तो ये काम किसका है? इंजीनियर का काम है। इंजीनियर किस लिए अपॉइंट होता है? कंपनी करती है कि मेरा वो कुछ बचाएगा, ये नहीं कि लॉस करके चला जाएगा। ये सही है कि गलत है? बोला जाए। एनीवन? सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कुछ? आया सर। है ना? यस सर। तो तुम लोग ये काम कर लोगे ना? फिर कोई बाद में पूछेंगे तो बता दोगे ना सर? जी सर। This is work on practical and book. Very difference between the books and practical. इसलिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। बुक तो हम लोग ऐसे ही पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली काम कर लोगे तो पूरा बुक्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुम पढ़ने के लिए। सर प्रैक्टिकल में ऐसा क्यों दिया था सर? ऐसा क्यों दिया जाता है? तो प्रैक्टिकल में ऐसा चीज है कि सब लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। हम तो बुक में पढ़ते हैं। कॉलेज में सर प्रैक्टिकल होगा ना हम लोग का, ये सब मेजरमेंट ये सब कुछ सब होगा, सब होगा। कॉलेज खुलेगा सब प्रैक्टिकल होगा। तो कॉलेज खुल जाएगा क्योंकि अब तो झारखंड सरकार का तो नोटिस शायद आ गया है कि अब खुल सकता है कॉलेज। कब से देखो कॉलेज को नोटिस कब आता है? मे भी शायद ओपन हो जाए 1 मंथ में। ठीक है? तो दिस इज द वेरी माइनर मिस्टेक कन्वर्टेड टू द मेजर मिस्टेक। ये सब तुम लोग को फोकस करना है। इतना समझ में आया ना? जी सर। ओके, तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे, हाउ टू यूज कंस्ट्रक्शन। एक और क्वेश्चन तो, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ एनफोर्समेंट, कोई जानता है? हाँ सर। कैसे? एक तो है सर d² में 162 करके हम निकाल सकते हैं पर मीटर लेंथ ऑफ या गुड। किसी का। गुड। और एक है सर जैसे हम जानते हैं कि वेट ऑफ स्टील है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ओके। और उसका अगर हम डाया हमको पता है तो उसका वॉल्यूम निकाल के हम निकाल सकते हैं कि क्या उसका वेट होगा। Oh, this is a very long procedure, but it's a easy procedure. d² of 162 is a kg per meter. Okay, Yes, sir. this is a very easy and good method. How to find the weight of enforcement. This is a very important. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। Okay, sir. ओके, अटेंडेंस हो गया? ले लिया टेस्ट तुम लोग का? हाँ सर, हम एक बार लेफ्ट हो गए थे बीच में सर, रौनक गुप्ता बोल रहे। हाँ, कोई बात नहीं, आ गया है। हम भी थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे सर। This is a recorded है, video is recorded, so all attendance are recorded. ओके, थैंक यू सर। Okay, Thank you, sir. थैंक यू सर। okay, Thank you, sir. okay.